آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ معتبر صاحبان سے کچھ دیر پہلے ہی بات ہوئی۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی نگراں وزیر اعلیٰ بنائے جانے کے بعد گفتگو کہتے ہیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے کچھ دنوں سے بات چل رہی تھی۔ متعلقہ صاحبان نے بتایا مجھے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا گیا ہے اور معاملہ طے ہو گیا ہے۔ مقبول باقر کا کہنا تھا کہ حلف برداری سے متعلق ابھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو نہیں، لیکن جو بھی معتبر صاحبان ہیں انہوں نے سب نے مجھے ابھی وقتاً فوقتاً بتاتے رہے ہیں، ابھی بہت ریسنٹلی تو سب نے بتایا، ویسے آفیشیل کہیں گے یعنی مجھے نہیں ہے۔ تمام متعلقہ لوگ جو ہیں معتبر صاحبان انہوں نے سب نے مجھ سے بات کی ہے۔ ابھی آخری میں خاص سے چند منٹ پہلے بھی بات ہوئی ہے، ٹریجری سے بھی ہوا اور ہمارے اپوزیشن کی طرف سے بھی انڈیا آیا۔ کچھ دن سے بات یہ کچھ چل رہی تھی، کچھ مجھے پرسویٹ کیا جا رہا تھا کچھ عرصے سے، تو بات تو کچھ عرصہ ہو گیا چل رہی ہے۔ مجھے یہ اطلاع دی گئی کہ معاملہ طے ہو گیا۔ برداری کے سلسلے میں ابھی کوئی بات نہیں ہوئی، ممکن ہے کل ہو یا پھر ایک آدھ دن بعد ہو۔ اور نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کے نام پر اتفاق ہو گیا۔ بول ایک بار پھر سب سے آگے، سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ کون ہوں گے؟ بول نے اپنے ناظرین کو بتایا سب سے پہلے جب اجلاس ہوا تھا نہ ہی اپوزیشن لیڈر وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچی تھی۔ بول نے ذرائع سے دی مصدقہ خبر، ناظرین کو بتایا کہ جسٹس مقبول باقر کے نام پر اتفاق ہو گیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان کون ہوگا فیصلہ نہ ہو سکا۔ اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو اور اپوزیشن لیڈر ملک سکندر ایڈوکیٹ کی ملاقات بے نتیجہ ختم ہو گئی۔ ملک سکندر نے کہا عثمان بادینی کا نام تجویز کیا ہے، تاہم حکومتی اتحاد کے نام ابھی تک فائنل نہیں ہیں۔ دونوں رہنماؤں کی ایک آج صبح ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر ملک سکندر کا کہنا ہے امید ہے آج ہونے والی ملاقات میں کوئی نام فائنل کر لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن لیڈر ملک سکندر نے مولانا فضل الرحمان سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا ہے۔ کرسی وہی رہی، کردار بدل گئے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف رخصت ہو گئے۔ نگراں وزیر اعظم کی تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ نگراں وزیر اعظم نے عہدہ سنبھالتے ہی اٹارنی جنرل کو عہدہ چھوڑنے یا استعفیٰ دینے سے بھی روک دیا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں نیا مہمان، نگراں وزیر اعظم کی آمد، وزیر اعظم شہباز شریف کی رخصتی۔ نگراں وزیر اعظم نے وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں سنبھال لی، اٹارنی جنرل کو عہدہ چھوڑنے یا استعفیٰ دینے سے بھی روک دیا۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ تمام وزارتوں سے اہم امور پر بریفنگ طلب کر لی۔ اس سے قبل کابینہ ڈویژن نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ کابینہ ڈویژن نے شہباز شریف کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ میں انوار الحق کاکڑ صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے آج ہی اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ ایوان صدر میں منعقدہ تقریب حلف برداری میں صدر عارف علوی نے انوار الحق کاکڑ سے حلف لیا۔ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں۔ تقریب میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور آرمی چیف سمیت نامور شخصیات نے شرکت کی۔ اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے مختلف وفود کی ملاقاتیں۔ بلوچستان سے آنے والے وفد نے سینیٹر سرفراز بگٹی اور میر خالد لانگو شامل تھے۔ وفد نے وزیر اعظم کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ سابق صوبائی وزیر میر عاصم کی بھی نگراں وزیر اعظم سے ملاقات۔ میر عاصم گیلو نے وزیر اعظم کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کا منظر بدل گیا۔ نگراں وزیر اعظم کی آمد، وزیر اعظم شہباز شریف رخصت ہو گئے۔ وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑ دیا۔ وزیر اعظم ہاؤس سے بھی روانگی۔ سابق وزیر اعظم کی روایتی تقریب کے ساتھ رخصتی، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو وزیر اعظم ہاؤس میں متعارف کرایا گیا۔ نگراں وزیر اعظم نے سبکدوش وزیر اعظم کو رخصت کیا۔ شہباز شریف نے ایوان وزیر اعظم سے رخصت ہونے سے پہلے عملے سے الوداعی ملاقات بھی کی۔
जिस तरह पीटीआई ने मईशत और इदारों के साथ खिलवाड़ किया वो काबिल मजम्मत है। लीगी रहनुमा राना तनवीर ने चेयरमैन पीटीआई को निशाने पर रख लिया। बोले ऐसे जत्थे को किसी तरह भी इंतखाब लड़ने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। अब इस बाब को बंद हो जाना चाहिए। जिस तरह खिलवाड़ किया उसने पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ और अदारों के साथ, और जिस तरह 9 मई के वाक़यात हुए हैं, मेरा बल्ला तो नहीं होना चाहिए। मैं तो इसका नहीं समझता कि अब भी गुंजाइश है कि इस किस्म के जत्थे को इजाज़त दी जाए कि वो सियासत के नाम पे ऐसी कार्रवाई कर जाए जैसे पाकिस्तान के अदारों पे या ऐसे मामलात हो जाएं जैसे मैं समझता हूँ, मुझे तो मैं लफ्ज़ भी नहीं कह सकता, जैसे हमारा मुल्क का बहुत नुकसान हो जाए, वो पाकिस्तान कमज़ोरी की तरफ जाए। उन लोगों ने काफ़ी देख लिया है उसका मामलात, उसके कारनामे। अब मेरा हाल इस चैप्टर को तो क्लोज होना चाहिए। और नैब टीम पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही को लेकर लाहौर पहुंच गई। परवेज इलाही को जिस्मानी रिमांड के लिए आज सुबह एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ परवेज इलाही को नैब ने असासा जांच रेफरेंस में कार किया। नैब लाहौर की टीम परवेज इलाही को अडियाला जेल से लेकर सेशन कोर्ट रावलपिंडी पहुंची। अदालत ने 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। चौधरी परवेज इलाही को 19 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर से सेंट्रल जेल अडियाला मुंतकिल करके नज़रबंद कर दिया गया था। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही के 3 MPO के तहत 30 दिन की नज़रबंदी के अहकाम जारी किए थे। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। हर साल की तरह कश्मीरी आज भी भारत के यौम आज़ादी पर यौम स्याह मनाएंगे। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कश्मीरी भारत के जुल्म और जबर को बेनकाब करेंगे। रैलियां निकाली जाएंगी, घर घर स्याह परचम लहराए जाएंगे। भारत का यौम आज़ादी, यौम स्याह, भारत से नफरत का इजहार, कश्मीरियों का पाकिस्तान से प्यार। हर साल की तरह कश्मीरी आज भी भारत के यौम आज़ादी पर यौम स्याह मनाएंगे। वादी को जेल में बदल दिया गया है। सोशल मीडिया पर पाबंदी है। 20 लाख कश्मीरियों को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। भारत के जुल्म जबर को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। दुनिया भर में कश्मीरी भारत से नफरत का इजहार करेंगे। यौम स्याह पर घरों और गलियों में स्याह परचम लहराए जाएंगे। रैलियां मुनक्किद की जाएंगी। जलसे और जुलूस के जरिए भारतीय दहशत गर्दी को उजागर किया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों इतराफ कश्मीरियों ने पाकिस्तान का यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाया। मकबूजा वादी में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। श्रीनगर समेत कई इस्लामिक आज़ाद कश्मीर में मरकजी तकरीब दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में हुई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने परचम कुशाई की। सरकारी और नीम सरकारी इमारात पर कौमी परचम लहराए गए। और कौम को 76वां जश्न आज़ादी मुबारक। कौम आज जश्न आज़ादी मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के आज़म की तजदीद के साथ मना रही है। शहर शहर गांव गांव आज़ादी के रंग, बच्चे क्या बूढ़े क्या जवान सभी हैं शादवान। दिन का आगाज़ वफाकी और सूबादारुल हुकूमत तोपों की सलामी से। सदर आरिफ अलवी ने सेंटर में मुनाकिदा तकरीब में सब हिलाली परचम लहराया। कराची में मज़ार कायद और लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। आज़ादी के मतवालों ने हिलाली परचम, झंडियाँ और रंग बिरंगी लाइट से पूरा देश सजा दिया। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में भी जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाया गया। बानी पाकिस्तान की आखिरी आरामगाह ज़ियारत रेजिडेंसी पर परचम कुशाई की तकरीब हुई। अहम शख्सियात, सिविल सोसाइटी और आम लोगों ने परचम कुशाई की तकरीबात में भरपूर शिरकत की। बलूचिस्तान में यौम आज़ादी की तकरीबात का अहवाल आज़म उल्फत की रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में भी जश्न आज़ादी की खुशियाँ। बलूचिस्तान असेंबली, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और कायद आज़म का पसंदीदा आरामगाह ज़ियारत रेजिडेंसी पर परचम कुशाई की तकरीबात। दिन का आगाज कोयटा में नमाज फजर के बाद 21 तोपों की सलामी से हुआ। परचम कुशाई की मरकजी तकरीब बलूचिस्तान असेंबली और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में हुई। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली मीर जान मोहम्मद जमाली ने असेंबली सब्ज़ार और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अदालत के अहाते में कौमी परचम बुलंद किया। स्पीकर बलूचिस्तान ने जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, मुल्क को तरक्की देना हमारा अज़्म है। चीफ जस्टिस अदालत आलिया नईम अख्तर अगवान ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले कौम का फख्र है। वो जज्बा भी है और इंशाअल्लाह ये हम नियत भी करके बैठे हैं कि हमने पाकिस्तान में रहते हुए इंतहा की तरक्की और मुंतज़िम हालात
को हासिल करना है। चमन, तप्तान, मखरान, नसीराबाद, जोब, लोरालाई और कल्ला डिवीजन्स में भी परचम कुशाई की तकरीबात हुई। जश्न आज़ादी की मुनासबत से कोयटा में सरकारी इमारतों, रेलवे स्टेशन और अहम शाहराहों को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया। कैमरा टीम के साथ आजम उलपत, बोल न्यूज़, कोयटा। पाकिस्तान और इमारात की लाजवाब दोस्ती। दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी परचम लहरा कर पाकिस्तानी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी गई। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की जश्न आज़ादी पर मुबारकबाद। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने जश्न आज़ादी के जज्बों पर मसनूआत की अक्कासी की। उन्होंने 76वां यौम की मुबारकबाद दी और लिखा कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का दरीना दोस्त रहा है। हमारा रिश्ता हर गुजरते साल के साथ मजबूत होता जा रहा है। पाकिस्तान में तो आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाया ही गया, लेकिन बैरून मुल्क भी ओवरसीज़ किसी से कम नज़र न आए। मुख्तलिफ ममालिक में कौमी तरानों और सब्ज़ परचमों की बहार छाई रही। अमरीका, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और डेनमार्क समेत मुतादिद ममालिक में मिली नगमों और नारों से इस दिन को मनाया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 76वें जश्न आज़ादी के मौके पर मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात के लिए सिविल अवार्ड्स का ऐलान कर दिया। 696 मुल्क में मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात के लिए सिविल अवार्ड्स का ऐलान किया गया है। बेहतरीन कारकर्दगी, पाकिस्तान के लिए खिदमात, शुजात और बहादुरी पर दिए जा रहे हैं। फहरिस्त के मुताबिक कोरोना वायरस के दौरानिए में फ़राइज़ की अदायगी में शहीद होने वालों के लिए भी अवार्ड्स का ऐलान किया गया है। काबीना डिवीज़न के मुताबिक सिविल अवार्ड्स देने की तकरीब 23 मार्च 2024 को होगी। और कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सुन्नी उलमा काउंसिल पाकिस्तान कराची की जानिब से यौम आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से परचम कुशाई की गई। इस मौके पर अल्लामा मोहम्मद अशरफ गुरमानी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। कहा कि उलमा अहले सुन्नत भरपूर अंदाज में जश्न आज़ादी मनाते हैं। खालिक अकबर जल्ल जलालुहु अम्मन वालुहु ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। उन नेमतों में से एक नेमत मुल्क पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान की तश्कील के लिए और इसकी तामीर और तरक्की के लिए हमारे असलाफ ने, हमारे बुज़ुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। उनकी कुर्बानियों को बदौलत इस वक्त हम इस मुल्क में आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिलखुसूस रब लम यज़ल शुहदाए पाकिस्तान के दराजात को बुलंद फरमाए। अल्लाह उनकी कुर्बानियों की बदौलत इस मुल्क को इस्तेहकाम नसीब फरमाए। मुल्क भर में जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाया गया। छोटे बड़े शहरों में तकरीबात हुई। तलबा ने मिली नगमे और टैबलोस पेश करके वतन अजीज़ से वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। मुल्क का चप्पा चप्पा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। कराची में MTA वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी फेस्टिवल बराए ख़वातीन का इनेकाद किया गया। तकरीब में रियासत जूनागढ़ की शहजादी और PP की साबिका MNA असेंबली रुबीना कायमखानी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की लैंडिंग शुरू हो चुकी है। 14 अगस्त की दोपहर पहली बैनुल-अक़वामी परवाज़ स्कर्दू पहुंची तो वालेहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर फ्लाइट को वाटर कैनन सैल्यूट पेश किया गया। सतह समंदर से 7500 फुट बुलंदी पर वाक़े इस एयरपोर्ट पर पहली बैनुल-अक़वामी परवाज़ की लैंडिंग का एजाज़ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को हासिल हुआ। स्कर्दू एयरपोर्ट पर बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से सयाहों और मुसाफिरों को फ़ायदा पहुँचेगा और मुकामी मईशत पर भी मस्बत असरात मुरतब होंगे। और PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने कौमी क्रिकेटर्स की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम दोगुना करने का ऐलान कर दिया। जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब में ज़का अशरफ का कहना था कि हम वुमेन क्रिकेटर्स के कॉन्ट्रैक्ट की रकम में भी इजाफा कर रहे हैं। नए फर्स्ट क्लास सीजन में डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। ख़वातीन को आगे लाने के लिए वुमेन प्लेयर्स डेवलपमेंट PCB भी शुरू करने जा रहा है। PSL की तर्ज पर वुमेन लीग भी प्लान हो रही है। कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात में बेहतरी लाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का स्पेल जारी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शदीद बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। PDMA ने 16 अगस्त तक तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। एबटाबाद, खैबर स्वाबी और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मंडलाने लगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान है। कराची में मौसम बदस्तूर अबर आलूद।
बारिशों का स्पेल, तेज बारिश से जल थल एक। रावलपिंडी में शदीद हब्स के बाद बारिश जम के बरसी। बारिश से बहौल बाजार शाहराह तालाब में तब्दील हो गई। कैंट का इलाका जॉन कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल हो गया। बारिश की वजह से नाला लई में कटियारी और गवालमंडी के मकाम पर पानी की सतह 12 फीट तक बुलंद हो गई। वासा के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गयी। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी तेज बारिश से जल थल एक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बादलों ने डेरे डाल लिए। कश्मीर में भी खूब जमकर बारिश हुई। कराची में मौसम बदस्तूर अबर आलूद है, जबकि देही सिंध के बेशतर अजला गर्मी की लपेट। दूसरी जानिब PDMA ने 16 अगस्त तक तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। सवात, कोहिस्तान, बनेर, मानसेरा और अगजई, शांगला, दीर में लैंड स्लाइडिंग और सैलाब का खदशा। एबटाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, स्वाबी और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, कसूर, शेखुपुरा, गुजरावाला, गुजरात, मियांवाली, सरगोधा, खुशाब में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बदीन, ठट्टा, सजावल और थरपारकर समेत साहिली मकामात पर हल्की बारिश। और आपको बताएंगे कैफी खलील की अमेरिका में शानदार परफॉर्मेंस, शुरा झूम उठे। कैफी खलील के गानों को भी खूब एंजॉय किया। और बिजली के तारों से झूला झूलते बकरे मियां दरअसल जा तो ट्रक में अपनी मंजिल की जानिब थे, लेकिन बकरे के सींगों ने उनको तारों में फंसा दिया और ये वीडियो तवज्जो का मरकज बन गई। खबरों में फिलवक्त इतना है। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।